بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضیٰ ومن بہداہم اہتدی وبآثار اہل المدینہ اکتفی وعلی ھذا قلنا لا يجب النذیر فی جزاء الصید لقولہ تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والأسفور ونحوهما بالاتفاق فلا يراد المثل من حيث الصورة إذ لا عموم للمشترك أصلا فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع. اس عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں. اور اس بنا پر ہم نے کہا یعنی مشترک میں امام صاحب کے نزدیک عموم نہیں ہوتا. بیک وقت ایک لفظ مشترک سے چند معنی مراد نہیں لیے جا سکتے خصوصاً کلام مثبت میں. اس بنا پر ہم نے کہا کہ شکار کی جزا میں مثل سوری واجب نہیں ہوگا. النذیر کا مطلب مثل سوری. اسی بنا پر ہم نے کہا کہ عموم مشترک ہمارے نزدیک جائز نہیں. اس بنا پر ہم نے کہا کہ شکار کی جزا میں مثل سوری واجب نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی وجہ سے فجزاء مثل ما قتل من النعم کہ اگر تم میں سے کوئی احرام کی حالت میں شکار کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو بطور بدلہ پیش کیا جائے. فجزاء مثل ما قتل کا جو شارٹ اور سمپل والا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کو قتل کیا تو پھر وہ جانور جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کا مثل بطور بدلہ اس پر واجب ہوگا. اگر کسی نے احرام کی حالت میں کسی جانور کو قتل کیا اور اس کا شکار کیا تو وہ جانور جس کا قتل اس نے کیا ہے اس کا مثل بطور جزا اس پر واجب ہوگا. تو اس آیت کی وجہ سے شکار کی جزا میں مثل سوری واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ مثل ایک ایسا لفظ ہے جو مثل سوری اور مثل معنوی کے درمیان مشترک ہے، اور مثل معنوی اس شکار شدہ جانور کی قیمت ہے. اور دیکھو اسی نص سے کبوتر کے شکار میں اور چڑیا کے شکار میں اور ان جیسے جانوروں کے شکار میں مثل معنوی کو مراد لیا گیا، تو پھر مثل سوری کو مراد اب اسی آیت میں نہیں لیا جائے گا کیونکہ مشترک کے لیے عموم نہیں ہوتا بالکل بھی. چنانچہ مثل سوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا مثل سوری و معنوی کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے. ایک اور مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات دل میں راسخ ہو جائے. اسی بنا پر ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فجزاء مثل ما قتل من النعم کی وجہ سے شکار کی جزا میں مثل سوری واجب نہیں ہوگا. آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احرام کی حالت میں شکار کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اب جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے اس کا مثل اس پر واجب ہوگا بطور بدلہ، اس لیے کہ مثل سوری اور مثل معنوی کے درمیان مشترک ہوتا ہے، اور مثل معنوی کا مطلب اس شکار شدہ جانور کی قیمت ہے. اس نص سے کبوتر اور چڑیا اور ان جیسوں جانور کے شکار میں مثل معنوی مراد لیا گیا ہے. اس نص کے اندر مثل معنوی ایک مرتبہ مراد لے لیا گیا ہے، کبوتر کے شکار میں، چڑیا کے شکار میں اور ان جیسے جانوروں کے شکار میں ایک مرتبہ مثل معنوی مراد لے لیا گیا ہے. تو اب مثل سوری اسی آیت کے اندر مراد نہیں لیا جائے گا کیونکہ مشترک کے لیے عموم نہیں ہوتا بالکل بھی. چنانچہ مثل سوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا مثل سوری اور معنوی کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے. ترجمہ انشاءاللہ مجھے یاد دلانا، آخر میں بھی ایک مرتبہ کر لوں گا تاکہ پوری تفصیل آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اب ذرا مسئلہ سمجھتے ہیں. دیکھو صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مذہب احناف کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے اب اس مذہب کی تفصیل بیان کر رہے ہیں.
इमाम साहब ये कहते हैं कि मुश्तरक के अंदर उमूम खुसूसन कलाम मुस्बत में नहीं होता, यानी एक लफ्ज़ मुश्तरक से चंद मानी मुराद हो एक ही वक्त के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्तरक के अंदर उमूम नहीं है। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक मसला समझने, इसकी तफसील साहिब उसूल शाशी हमारे सामने बयान कर रहे हैं। देखो मसला ये है कि हालत एहराम में शिकार करना और किसी वहशी जानवर को कत्ल करना जायज़ नहीं। कुरान के अंदर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस्सैदा व अंतुम हुरुम, ए ईमान वालो शिकार को कत्ल मत करो एहराम की हालत में। यानी जब तुम हालत एहराम के अंदर हो तो हालत एहराम में शिकार करना जायज़ नहीं, किसी वहशी जानवर को कत्ल करना जायज़ नहीं। न हरम में जायज़ है, न हुदूद हरम में जायज़ है, न उससे बाहर जायज़ है। न उन जानवरों का शिकार करना जायज़ है जिनका गोश्त खाया जाता है, जिनका गोश्त हलाल है, और न उन जानवरों का शिकार करना जायज़ है जिनका गोश्त खाया नहीं जाता। यानी हलाल जानवरों का शिकार करना भी जायज़ नहीं हालत एहराम में। मसलन हिरन का शिकार करना जायज़ नहीं, इसी तरह खरगोश का शिकार करना जायज़ नहीं, अगरचे इन जानवरों का गोश्त खाया जाता है। इसी तरह उन जानवरों का शिकार करना भी जायज़ नहीं हालत एहराम में जिनका गोश्त खाया नहीं जाता। मसलन भेड़िए का शिकार करना, शेर का शिकार करना, तेंदुए का शिकार करना, चीते का शिकार करना, इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो हालत एहराम में शिकार करने की इजाज़त नहीं है, ना हुदूद हरम में इसकी इजाज़त है, ना उससे बाहर इसकी इजाज़त है। ना उन जानवरों का शिकार जायज़ है जिनका खाना जायज़ है, और ना उन जानवरों का शिकार जायज़ है जिनका खाना हराम है। अलबत्ता ये बात आप लोगों के सामने वाज़े रहे कि शिकार से मुराद वहशी जानवर है, उनको कत्ल करने की इजाज़त नहीं। वरना अगर कोई जानवर पालतू हो, मसलन मुर्गी, गाय, बकरी, तो हालत एहराम में उसको कत्ल करने में कोई हरज नहीं। हालत एहराम में शिकार करने की इजाज़त नहीं है, ज़बाह करने की इजाज़त नहीं, ऐसा नहीं। हालत एहराम में अगर कोई आदमी पालतू जानवर को जो बिदका हुआ ना हो, गाय है, बकरी है, मुर्गी है, उसको ज़बाह करना चाहे तो ज़बाह कर सकता है, कोई हरज नहीं। इससे जज़ा वाजिब नहीं होती। जज़ा उस वक्त वाजिब होती है जब हालत एहराम में कोई आदमी शिकार करे, और वो भी वहशी जानवर का शिकार करे, जंगली जानवर का शिकार करे। और जिस जानवर का फिर वो शिकार कर लेता है वो जानवर फिर हराम हो जाता है। हालत एहराम में अगर किसी ने किसी जानवर का शिकार किया और वो जानवर हालत एहराम में शिकार किया हुआ है तो फिर वो हराम हो जाता है। उसको खाना जायज़ नहीं, न उसका सदका करना जायज़ है। सदके के तौर पर तुम फुकरा को भी नहीं दे सकते, वो हराम जानवर है। उसके गोश्त से किसी भी तरह का इंतिफा जायज़ नहीं। हाँ, उसकी जो खाल है दबागत के बाद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना उस गोश्त से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। कुरान के अंदर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस्सैदा व अंतुम हुरुम, तुम हालत एहराम में ईमान वालों शिकार मत किया करो, जंगली जानवरों को कत्ल मत किया करो। कुरान के अंदर मुहरिम के लिए शिकार की हुर्मत बयान हुई है। इसकी वजह ये बात उलमा ने बयान की है कि मुहरिम जो होता है वो मस्ताना होता है, वो अपनी दीवानगी के अंदर होता है और मजनून होकर अल्लाह तबारक व तआला के दियार के अंदर पहुंचता है और अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है। अब जब अल्लाह को तलाश करने के लिए वो गया है, उसके रसूल की मोहब्बत तलाश करने के लिए वो गया है, अल्लाह की इबादत करने के लिए उसने इतना लंबा चौड़ा सफ़र किया है, तो उसके लिए ज़रूरी है ये कि वो अब इबादत के अंदर लगा रहे, कोई भी एक ऐसी हरकत ना करे जो इबादत से उसको हटा दे, यानी दुनियावी लज्जतों से अपने आप को दूर रखे। शिकार करना दुनियावी लज्जत है, मुबाशरत करना अपने अहल व अयाल के साथ ये एक दुनियावी लज्जत है, इसलिए इन सब चीज़ों को एहराम की हालत में हराम किया गया। इसी तरह शिकार एहराम की हालत में हराम है। अब मुमानाअत का ताल्लुक़ खुश्की के जानवरों के साथ है कि जो खुश्की के जानवर हैं ना, हिरन जो खुश्की में रहता है,
میدان میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، سمندر میں نہیں رہتا، اس جانور کو قتل کرنا حالت احرام میں جائز نہیں، کیونکہ یہ خشکی کا جانور ہے۔ تو ممانعت کا تعلق خشکی کے جانوروں کے ساتھ ہے، مثلا ہرن، شیر، چیتا، تیندوے، خرگوش۔ ممانعت کا تعلق ان جانوروں کے ساتھ ہے، ورنہ جو جانور باہری ہیں، سمندر کے اندر رہتے ہیں، مچھلی، تو ان کے شکار کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ آدمی احرام کی حالت میں بھی فشنگ کر سکتے ہیں، اور احرام کی حالت کے اندر بھی آدمی مچھلیوں کا شکار کر سکتا ہے۔ یہ ممانعت جو ہے یہ خشکی کے شکار کے ساتھ مخصوص ہے، دریائی شکار مچھلی وغیرہ اس کے اندر شامل نہیں۔ اگر کوئی مچھلی وغیرہ کا شکار کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حالت احرام کے اندر موذی جانوروں کو قتل کرنے کی بھی اجازت ہے، وہ جانور جن سے تکلیف کا اندیشہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی حالت احرام میں چیل کو قتل کر دے، حالت احرام میں چوہے کو قتل کر دے، حالت احرام میں مردار کھانے والے کوے کو قتل کر دے، حالت احرام میں کاٹنے والے کتے کو قتل کر دے، جو کاٹتا ہو بھونکتا ہو ایسے کتے کو قتل کر دے، حالت احرام میں بچھو کو قتل کر دے، شیر سے اندیشہ ہے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، حالت احرام میں اس کو قتل کر دیا اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ حالت احرام میں تیندوا، چیتا، کھٹمل، ان کو قتل کر دیا ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے، تکلیف کا اندیشہ تھا۔ چپکلی کو قتل کر دیا، گرگٹ کو قتل کر دیا، تکلیف کا اندیشہ تھا اس لیے۔ تو حالت احرام میں اس طرح موذی جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اور اس قتل پر اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا، نہ جزا واجب ہوگی۔ ہاں اگر کوئی جانور تکلیف نہیں پہنچاتا، موذی نہیں ہے، اور اس کو قتل کیا شکار کی نیت سے، دریائی جانور نہیں ہے بلکہ خشکی کا جانور ہے وہ، مثلا ہرن، تو پھر اس کو قتل کرنا گناہ بھی ہے، سخت طرح حرام ہے، اور اس پر جزا بھی لازم ہوتی ہے، جزا واجب ہوتی ہے۔ جزا پر انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اگر کوئی چھوٹا کیڑا قتل کر دے، مکوڑا قتل کر دے، حرم میں یا حرم سے باہر، احرام کی حالت کے اندر اگر کوئی کیڑا مکوڑا قتل کر دے تو کیا اس قتل کرنے سے کوئی جزا واجب ہوتی ہے؟ تو یہ چھوٹا جانور ہے نا، اس لیے اس کو قتل کرنے سے جزا واجب نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر ان سے تکلیف کا اندیشہ نہ ہو تو ان کو قتل کرنا گناہ ہے، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ جو بھی مناسب سمجھے صدقہ کر دے، ایک دو لقمہ کسی فقیر کو کھلا دے۔ کیڑا مکوڑا اگر اس نے قتل کیا حالت احرام میں تو اس کا یہ حکم ہے۔ تو بات دراصل یہ چل رہی تھی کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کے جانور کو قتل کر دے تو اب بدلہ اس پر واجب ہے، اس کو ایک بدلہ دینا پڑے گا۔ قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ۔ یہ پوری آیت ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار کو قتل مت کرو، تمہارے لیے یہ شکار کرنا حرام ہے۔ تم میں سے جو شخص جان بوجھ کر شکار کو قتل کرے گا تو اب جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے اس کا مثل بطور جزا اس پر واجب ہوگا۔ یہاں پر قرآن کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی جانور کو قتل کر دے تو اس پر جزا ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بھولے سے کسی جانور کو قتل کر دے تو اس سے جزا واجب ہوتی ہے۔ عام مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ ذرا غور سے یہ بات سنیں کہ یہاں متعمدن کی قید جو قرآن میں ہے نا، وہ تاکید کے لیے، تنبیہ کے لیے، یہ قید احترازی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جزا اسی وقت واجب ہوگی جب حالت احرام کے اندر جان بوجھ کر تم شکار کو قتل کرو، کہ اگر بھولے سے تم نے شکار کو قتل کر دیا، مثلا کسی نے شکار کو قتل کیا اور وہ بھول چکا تھا اس بات کو کہ وہ احرام کی حالت میں ہے،
या किसी ने तीर फेंका किसी दूसरी जगह की तरफ, लेकिन भूले से शिकार बीच में आ गया, शिकार को लग गया। यानी भूल से अगर किसी ने शिकार किया तो उस पर जज़ा वाजिब नहीं। तो इस तरह का मामला नहीं है। मुताम्मिदन की कैद यहाँ पर ताकीद के लिए और तंबीह के लिए, यहाँ पर बस ये बात बतानी मकसूद है कि देखो जानबूझकर कभी भी शिकार मत करना, इसका गुनाह बहुत बड़ा है, जज़ा तुम पर वाजिब होती है, बहुत बड़ा गुनाह है इसका। इसलिए जानबूझकर कभी भी मत करना। इस पर महज जोर डालने के लिए मुताम्मिदन की कैद लगाई गई। वरना अगर कोई आदमी भूले से भी शिकार करे ना, मसलन वो किसी और जगह पर तीर फेंक रहा था और वो तीर लग गया शिकार को, या ये कि उसने शिकार किया और भूल चुका था ये कि वो हालत इहराम में है, तब भी उस पर जज़ा वाजिब होती है। ऐसा नहीं कि जानबूझकर कत्ल करे शिकार को तभी जज़ा वाजिब, बल्कि अगर भूले से भी शिकार को कत्ल करे तब भी जज़ा वाजिब होती है। ज़मख़शरी की किताब अल-कश्शाफ़, उसके अंदर ये मजमून है कि बाज़ सहाबा के आसार से ये बात मालूम होती है कि जानबूझकर शिकार को कत्ल करने से भी जज़ा वाजिब होती है, भूले से शिकार को कत्ल करने से भी जज़ा वाजिब होती है। इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी सबकी राय इसी बात पर है कि भूले से भी अगर कोई शिकार को कत्ल कर दे हालत इहराम में तो उस पर जज़ा वाजिब होगी। अब उस जज़ा की मिकदार क्या है जो असल बहस है, जिसमें हमको हमारा असल फिट करना है, हमारा प्रिंसिपल फिट करना है, वो बयान करने से पहले दो लफ्ज़ आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ बतौर तमहीद, ताकि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो, एक होता है मिस्ले सुवरी और एक होता है मिस्ले मानवी। एक होता है मिस्ले सुवरी और एक होता है मिस्ले मानवी। मिस्ले सुवरी किसको कहते हैं? मिस्ले सुवरी उस जानवर को कहते हैं जो शिकार करदा जानवर के खिलकतन व हैअतन मिस्ल हो। मिस्ले सुवरी उस जानवर को कहते हैं जो शिकार करदा जानवर के खिलकतन और हैअतन मिस्ल हो। मिस्ले सुवरी उस जानवर को कहते हैं जो शिकार करदा जानवर के खिलकतन व हैअतन मुशाबे हो। मसलन हिरन का शिकार किया, अब हिरन के साथ कौन सा जानवर खिलकतन और हैअतन मुशाबहत रखता है? बकरी। तो हिरन के बदले में बकरी कुर्बान कर देना, ये है मिस्ले सुवरी हिरन का। आप समझे? इसी तरह किसी ने खरगोश का शिकार किया, अब कौन सा जानवर है ऐसा जो खिलकतन और हैअतन खरगोश से मुशाबहत रखता हो? बकरी का बच्चा। एक साल पूरा होने से पहले पहले जो बकरी का बच्चा होता है वो उसकी साइज बिल्कुल खरगोश की तरह होती है या नहीं? तो ये खरगोश का मिस्ले सुवरी। इसी तरह नील गाय, नील गाय कौन सा जानवर है ऐसा जो सुवरी एतबार से, हैयत के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से उसके मुशाबे हो? गाय। गाय, तो गाय नील गाय का मिस्ले सुवरी है। इसी तरह शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की अजीब कुदरत है। ऑस्ट्रिच, इसका जो अंडा होता है ना, इतना सख्त होता है कि ड्रिल मशीन के ज़रिए से भी इसको आदमी आर पार कर नहीं सकता, बहुत मुश्किल से आर पार होता है। लेकिन फिर भी जो छोटा सा चूजा उसके अंदर होता है वो मामूली हरकत करने से उसको फाड़ता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। तो ऑस्ट्रिच जो होता है, अगर किसी ने शुतुरमुर्ग का शिकार किया तो अब उसका मिस्ले सुवरी क्या होगा? वो जानवर जो शिकार करदा जानवर के खिलकतन और हैअतन मुशाबे हो। गाय या ऊँट, ये उसके मुशाबे। जैसे उमर ने शुतुरमुर्ग के शिकार पर गाय और ऊँट ही को वाजिब करार दिया था। तो ये सब मिस्ले सुवरी है। मिस्ले सुवरी समझे आप? और एक लफ्ज़ जो आपको समझना है वो है मिस्ले मानवी। मिस्ले मानवी आसान है, शिकार करदा जानवर की कीमत को कहते हैं। इसको मानवी इसलिए कहा गया क्योंकि हकीकतन ये मिसल नहीं है उसका, लेकिन कीमत से भी मुशाबहत हो जाती है कि वो कीमत अगर कोई आदमी मार्केट के अंदर दे तो बदले में वो जानवर हासिल किया जा सकता है।
तो इसको मिस्र मानवी कहेंगे। तो मिस्र मानवी शिकार करदा जानवर की कीमत को कहते हैं। तो मिस्र सुअरी और मिस्र मानवी समझ में आ गया। अब वापस अपने मसले पर आते हैं। हालत एहराम के अंदर मुहरिम के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी जानवर का शिकार करे। कुरान के अंदर इसकी मुमानात है। अगर कोई हालत एहराम में किसी जानवर का कत्ल करता है, उसका शिकार करता है, तो उस पर जज़ा वाजिब होती है। भूले से शिकार करे तब भी जज़ा वाजिब होती है। जानबूझकर शिकार करे तब तो बदरज ओला जज़ा उस पर वाजिब होगी। लेकिन अब वो जज़ा की कैफियत क्या है, तो उसके अंदर हमारे उलमा का इख्तलाफ हुआ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़हब ये है कि जिन जानवर का मिस्ले सुअरी मौजूद है वहाँ मकतूल जानवर के बदले में मिस्ले सुअरी को अदा करना वाजिब होगा। और जिन जानवरों का मिस्ले सुअरी मौजूद नहीं है, उनका कोई सुअरी मिस्ल नहीं है, तो फिर वहाँ मकतूल जानवर की कीमत देना लाजिम है। मजहब तो समझ गए ना, अब इसकी तफसील मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। मजहब फिर से बयान करूँ। इमाम मोहम्मद, इमाम शाफी और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह, इनका मजहब ये है कि अगर हालत एहराम में किसी ने शिकार को कत्ल किया तो देखा जाएगा कि जिस जानवर को कत्ल किया गया है उसका मिस्ले सुअरी है या नहीं। कोई जानवर है ऐसा जो शिकार करदा जानवर के खिलकतन और हेअतन मुशाबे है या नहीं। अगर है तो फिर इस सूरत में मिस्ले सुअरी वाजिब होगा बतौर बदला, बतौर जज़ा। और अगर वो जानवर जिसका शिकार हुआ है उसका कोई मिस्ले सुअरी मिलता नहीं है, कोई मिसली उसका नहीं है, वो बेनज़ीर और बेमिसाल है, तो फिर इस सूरत में उस जानवर की कीमत लाजिम होगी, मिस्ल मानवी लाजिम होगा। ठीक है। चुनांचे इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद रहिमहुमुल्लाह के नज़रिए के मुताबिक अगर कोई आदमी नील गाय का शिकार करे तो नील गाय का मिस्ल सुअरी एतबार से मौजूद है या नहीं है। क्या है नील गाय का मिस्ल? गाय। लिहाजा अगर किसी ने नील गाय को शिकार के अंदर किया और शिकार के अंदर वो उसको लाए तो फिर बदले के अंदर अब कुर्बानी गाय की देनी है। अगर किसी आदमी ने शुतर मुर्ग का शिकार किया तो अब शुतर मुर्ग का भी कोई मिस्ल है, गाय या ऊँट। अगर शुतर मुर्ग ज़रा कम दर्जे का है तो गाय, अगर शुतर मुर्ग ज़रा ऊंचा है तो ऊँट। तो आदमी बतौर बदला गाय या ऊँट को कुर्बान करेगा। अगर किसी ने हिरन का शिकार किया तो हिरन का भी मिस्ले सुअरी है या नहीं, बकरी, तो आदमी बकरी को कुर्बान करेगा बदले के अंदर। अगर किसी ने खरगोश का शिकार किया तो खरगोश का भी मिस्ले सुअरी मौजूद है, यानी बकरी का बच्चा जो 1 साल अभी उसका हुआ नहीं है, साल पूरा होने से पहले जो बकरी का बच्चा होता है वो खरगोश का मिस्ले सुअरी है, तो अब बकरी के बच्चे को कुर्बान किया जाएगा। तो ये तो उन जानवरों की बात थी जहाँ मिस्ले सुअरी था। अगर कोई जानवर ऐसा है जिसका कोई मिस्ले सुअरी नहीं, मसलन चिड़िया, उसका क्या मिस्ले सुअरी है, तो इस सूरत में इनके यहाँ भी कीमत वाजिब होगी, उस जानवर की कीमत वाजिब होगी, मिस्ले सुअरी वाजिब नहीं होगा। और वो कीमत के साथ क्या करेंगे उसकी तफसील आगे आएगी इंशाअल्लाह। अहनाफ का जब हम मज़हब बयान करेंगे तो कीमत के साथ क्या करना है उसकी वजाहत आपके सामने आएगी। तो अब इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम मोहम्मद रहिमहुमुल्लाह का मज़हब वाज़े हुआ यानी कि जिन जानवरों का मिस्ले सुअरी है अगर उनको शिकार किया तो बदले के अंदर मिस्ले सुअरी को अदा करना है। लेकिन जिन जानवरों का मिस्ले सुअरी नहीं, मसलन वो चिड़िया है जिसको शिकार के अंदर लाया गया, तो फिर उन जानवरों का मिस्ले सुअरी अदा करना मुमकिन है ही नहीं, तो इसलिए मिस्ले मानवी की तरफ रुजू होगा और कीमत उनकी अदा की जाएगी। अहनाफ का नज़रिया और अहनाफ का मज़हब इस सिलसिले में ये है कि अगर किसी आदमी ने हालत एहराम में जानवर का शिकार किया और उसने जानवर को कत्ल किया तो उस पर बदला वाजिब है। बदले के अंदर क्या अदा करेगा वो, तो खा उस जानवर का मिस्ले सुअरी हो या ना हो, हर हाल में
मिस्ल मानवी ही वाजिब होगा, यानी कीमत ही अदा करेंगे बतौर जज़ा, मिस्ल सुवरी किसी भी सूरत में वाजिब होगा ही नहीं। अहनाफ का नज़रिया समझे भाई? अहनाफ का नज़रिया ये है कि खा जानवर ऐसा हो कि उसका मिस्ल सुवरी हो, या खा जानवर ऐसा हो कि उसका मिस्ल सुवरी ना हो, जौन सा भी जानवर है अगर उसने उसका शिकार किया हालत एहराम में तो अब उसकी कीमत वाजिब होगी, मिस्ल मानवी वाजिब होगा। मज़ीद तफसील क्या? मज़ीद तफसील ये है कि अब होगा ये कि जो मुहरिम है जिसने जानवर का शिकार किया वो अब 2 आदिल लोगों को अपने पास बुलाएगा और उनका मशवरा लेकर उस शिकार किए हुए जानवर की कीमत मुतय्यन करेगा। वो 2 आदिल आदमी या तो उस जगह के रहने वाले हों या उसके करीब कोई जगह हो उसके रहने वाले हों, तो उनको बुलाएगा और उनसे कीमत मुतय्यन करेगा और कीमत मुतय्यन हो जाएगी। जब शिकार किए हुए जानवर की कीमत मुतय्यन हो जाए उसके बाद मुहरिम को इख्तियार है, अगर वो चाहे तो उस कीमत के बदले में कोई जानवर खरीद कर उसको हरम भेज दे और वहाँ पर उसको कुर्बान करा दे तो ये कफ़ारा अदा हो जाएगा, या ये कि उस कीमत को फ़ुक़रा के माबीन तकसीम कर दे। तकसीम करने का तरीका ये कि हर फ़कीर को निस्फ़ सा गेहूँ दे या निस्फ़ सा गेहूँ की कीमत दे। निस्फ़ सा गेहूँ यानी 1 किलो 692 ग्राम्स, 1 किलो 692 ग्राम्स गेहूँ हर एक फ़कीर को दे और देता रहे फ़कीरों को जब तक कि उस शिकार किए हुए जानवर की कीमत पूरी ना हो जाए। जब पूरी हो जाए तो फिर उसका कफ़ारा अदा हो गया। या अगर उसकी भी ताकत वो ना रखता हो तो उसके लिए ये भी इख्तियार है कि वो रोज़े रखे। हर निस्फ़ सा गेहूँ यानी हर 1 किलो 692 ग्राम्स गेहूँ के बकदर एक रोज़ा रखे और रोज़ा रखता रहे जब तक कि उस शिकार किए हुए जानवर की कीमत पूरी ना हो जाए। ये आदमी करेगा तो ये कफ़ारा अदा होगा उस शिकार का जो उसने हालत एहराम के अंदर किया। अहनाफ का मज़हब समझ में आया? फिर से एक और मतलब बयान करूं ताकि और वाज़ेह हो जाए। देखो, अहनाफ ये कहते हैं कि अगर हालत एहराम के अंदर कोई जानवर का शिकार करता है तो ये करना उसका मुनासिब फ़ेल नहीं था, ये हराम काम उसने किया, तो अब उस पर जज़ा वाजिब होगी। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि जज़ा के अंदर हम मिस्ल सुवरी को वाजिब नहीं करेंगे बल्कि मिस्ल मानवी को वाजिब करेंगे, खा शिकार किए हुए जानवर का मिस्ल सुवरी हो या ना हो। अगर होगा भी मिस्ल सुवरी तब भी हम उसकी कीमत निकालेंगे। अब कीमत निकालने के लिए क्या दस्तूर इख्तियार किया जाएगा कि जहाँ पर शिकार किया है उसी जगह के 2 दीनदार आदिल शख्स को हम बुलाएंगे या उनके पास जाएंगे या उसके करीब जगह के अंदर रहने वाले 2 दीनदार आदिल महायत रखने वाले लोग के पास हम जाएंगे या उनको बुलाएंगे और उनसे उस शिकार किए हुए जानवर की कीमत निकालेंगे कि भाई इस शिकार किए हुए जानवर की कितनी कीमत। हिरन शिकार किया तो वो कीमत बताएंगे, भाई इसकी कीमत है 5000 रुपये। नील गाय का शिकार किया वो कीमत बताएंगे कि भाई इसकी कीमत है 3000 रुपये। मिसाल दे रहा हूँ मैं, कीमत निकल गई तो अब 5000 या 3000 जो भी हो वो कीमत मुझे निकालनी है। अब मुझे इख्तियार है मुहरिम को उस कीमत के ज़रिए से या तो मैं कोई हदी खरीद कर हरम के अंदर उसको कुर्बान कर सकता हूँ, यानी उस कीमत के अंदर जो भी जानवर आए, गाय आवे, बैल आवे, बकरी आवे, अगर ज़्यादा कीमती जानवरों को मैंने कत्ल किया है तो जाहिर सी बात है मुझे जो जानवर खरीदना है उस कीमत से वो भी ज़्यादा कीमती होना चाहिए, बल्कि उस कीमत का मिसल होना चाहिए। अगर कम कीमत वाला जानवर मैंने कत्ल किया है तो उस कीमत के बकदर जोन सा जानवर आता हो ऐसे जानवर को ख़रीदना है और फिर उसको हरम के अंदर भेजना है और उसकी कुर्बानी वहाँ पर करवानी है। ठीक है, कुरान के अंदर है हदियम बालिगल काबा, काबा के पास इसको पहुंचा दो और वहाँ पर इसको कुर्बान कर दो। तो इसका मतलब ये नहीं कि काबा के पास पहुंचाना है, काबा से यहाँ पर मुराद हुदूद हरम है, तो हरम के अंदर जानवर को पहुंचा दे और वहाँ पर उसको कुर्बान करवा दे, या फिर जो कीमत आई है उसको फ़ुक़रा के माबिन तकसीम कर दे। हर फ़कीर को निस्फ़ सा गेहूँ दे, यानी 1 किलो 692 ग्राम्स
गेहूं दे या उसकी कीमत दे और देता रहे फ़कीरों को इस हिसाब से जब तक कि उस शिकार किए हुए जानवर की कीमत पूरी ना हो जाए। या फिर वो रोज़े भी रख सकता है। रोज़ा किस तरह रखेगा वो? तो निस्फ सा गेहूं के बदले एक रोज़ा उस पर वाजिब होगा। यानी जिस जानवर को उसने कत्ल किया है, शिकार किया है, उस जानवर की कीमत लगाई जाएगी और देखेंगे कि उस कीमत के अंदर कितने निस्फ सा गेहूं आ सकते हैं, कितने 1 किलो 692 ग्राम्स गेहूं आ सकते हैं। तो जितने आते हैं वो इतने रोज़े वाजिब होते जाएंगे। आदमी रोज़ा रखता रहे जब तक कि कीमत पूरी ना हो जाए। तो ये है मुकम्मल जज़ा मज़हब अहनाफ के तरीके के मुताबिक। अब ज़रा उसूल पर आ जाएं और साहिब उसूल शाशी इस मसले से हमको क्या बात बताना चाहते हैं उस पर ज़रा हम गौर करें। देखो यहाँ कुरान की जो आयत है फ़जज़ाउ मिस्लु मा क़तल मिनन नाम को लेकर बहस करनी, इसके अंदर ये बात है कि अगर कोई आदमी एहराम की हालत में शिकार को कत्ल कर देता है तो कत्ल किए हुए जानवर का बदल देना उस पर वाजिब है, मिस्ल बदल देना उस पर वाजिब है। इमाम शाफी, इमाम मोहम्मद वगैरह ये कहते हैं कि देखो यहाँ पर ये बात कही गई है कि बदल देना वाजिब है, लिहाजा हम बदल के अंदर गौर करेंगे कि बदल से क्या मुराद हो सकता है। तो या तो बदल से मुराद सुअरी बदल मुराद हो सकता है, या बदल से मुराद मानवी बदल मुराद हो सकता है, या तो कीमत मुराद हो सकती है, या वो जानवर मुराद हो सकता है जो शिकार किए हुए जानवर का खिलकतन और हेअतन मिसल। तो हम देखते हैं कि यहाँ आगे आयत ही के अंदर मिनन नाम आया है और मिन बयान के लिए वो कहते हैं कि मिन जो है वो मिसल का बयान है। मिन जो है वो कि बदल वाजिब होगा, वो बदल क्या है? यानी नाम, चौपाया। यानी वो कहते हैं खुद आयत के अंदर ये बात बताई गई है कि बदल के अंदर हमको चौपाया देना है, क्योंकि मिनन नाम के अंदर मिन बयान है मिसल का, तो बदल कैसा होगा? चौपाया। और चौपाया बदल कब होता है? जब मिसल सुअरी मुराद हो तब, मिसल मानवी मुराद हो तो फिर चौपाया बदले के अंदर नहीं आता। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए वो कहते हैं कि मिसल सुअरी वाजिब होगा, आयत से ये बात मालूम होती है। हम कहते हैं कि मिनन नाम के अंदर मिन बयान के लिए तो है, लेकिन तुमने जो ये कहा ना कि मिसल का बयान, ये सही नहीं, बल्कि हिकमत का तकाजा ये है कि मिनन नाम के अंदर मिन को मा कत्ल का बयान मान लिया जाए। अहनाफ कहते हैं कि मिनन नाम के अंदर मिन जो है वो मिसल का बयान नहीं, बल्कि मिनन नाम के अंदर जो मिन है वो मा कत्ल का बयान है। यानी यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जिस शिकार को उसने कत्ल किया, यानी जिस चौपाए को उसने कत्ल किया, जो मकतूल चौपाया उसका बदल तुमको देना है। ये नहीं कि वो बदल चौपाया हो गया, बल्कि जो चौपाया कत्ल हुआ उसका बदला देना है। तो यहाँ पर मिनन नाम मा कत्ल यानी मकतूल का बयान है, मिसल का बयान नहीं। तो यहाँ फिर इससे मिसल सुअरी को साबित करना सही नहीं। देखो यहाँ पर मिसल जो है ना एक मुश्तरक लफ्ज़ है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो चंद मानी के लिए वज़ा किया गया है। मिसल से सुअरी मिसल भी मुराद हो सकता है और बदले से बदले मानवी यानी मिसल मानवी भी मुराद हो सकता है। अब हमको ज़रा सोचना है कि यहाँ पर कौन सा मिसल मुराद है। शवाफ़े ने तो यहाँ पर मिसल मानवी मुराद नहीं लिया, बल्कि मिसल सुअरी को मुराद लिया, और अहनाफ ने यहाँ मिसल से मिसल मानवी मुराद लिया। अहनाफ ये कहते हैं कि देखो ए शवाफ़े, ए वो लोग जो इमाम मालिक की पैरवी करते हैं, ए वो लोग जो इमाम मोहम्मद की पैरवी करते हैं, वो जानवर जिनका मिसल सुअरी ना हो उसके अंदर क्या वाजिब होता है? तुम्हारे नज़दीक भी मिसल मानवी वाजिब होता है या नहीं? इमाम मोहम्मद का मज़हब आप देख लो, इमाम मालिक का मज़हब आप देख लो कि कबूतरी का शिकार अगर किसी ने किया, चिड़िया का शिकार किसी ने किया, या इन जैसे जानवरों का शिकार किसी ने किया, तो इनका मिसल इनके यहाँ पर भी नहीं है, कोई सुअरी मिसल नहीं है। तो जब सुअरी मिसल नहीं है तो ये लोग भी क्या कहते हैं? कीमत वाजिब होगी। हाँ, इमाम शाफी कबूतरी के अंदर एक अलग राय कायम करते हैं। इमाम शाफी कबूतरी के अंदर कुछ अजीब बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि कबूतरी का अगर किसी ने शिकार किया ना तो उसका मिसल बकरी है,
इमाम शाफी जो ये बात कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि देखो, जिस तरह कबूतरी एक ही घूंट में पानी पी लेती है, इसी तरह बकरी भी एक ही घूंट में पानी पी लेता है। जिस तरह कबूतरी पानी पीती है तो ज़रा आवाज़ करती है, वो कुक्कू जैसी आवाज़, तो इसी तरह बकरी भी जब पानी पीती है तो आवाज़ लेकर पीती है। तो इस एतबार से उन्होंने मुमासलत कुछ साबित की है, लेकिन इमाम शाफी का ये कौल हमारे नज़दीक कतअन मोतबर नहीं, इस पर हमको कलाम नहीं करना, वरना कयास की बहस शुरू हो जाएगी। हमको तो बस ये बताना है कि देखो, वो जानवर जिनमें तुम्हारे यहाँ कोई मिस्ल सुअरी ना हो और उसको शिकार किया जाए, मसलन चिड़िया या इमाम मोहम्मद के मज़हब के मुताबिक कबूतरी, इसका कोई मिस्ल सुअरी नहीं है, तो फिर वहाँ पर भी तुम कीमत और मिस्ल मानवी ही को वाजिब करार देते हो या नहीं? तो जब वहाँ पर तुम मिस्ल मानवी को वाजिब करार देते हो तो इसका सबूत कहाँ से लेकर आए तुम? तो वो कहेंगे इस आयत से, फ़जज़ाउ मिस्लु मा क़तल मिनन नाम। तो मालूम हुआ कि यहाँ फ़जज़ाउ मिस्लु मा क़तल मिनन नाम के अंदर मिस्ल से वो मिस्ल मानवी मुराद लेते हैं उस वक्त जब शिकार किया हुआ जानवर ऐसा हो जिसका कोई मिस्ल सुअरी ना हो। ने फिर जब कोई जानवर ऐसा होता है जिसका कोई मिस्ल सुअरी है और उसको शिकार के अंदर कत्ल किया जाए, तो यही लोग इसी मिस्ल से मिस्ल सुअरी को मुराद लेते हैं। ये तो उम्मुए मुश्तरक हुआ, ये तो उम्मुए मुश्तरक हुआ कि जब शिकार किया हुआ जानवर ऐसा है जिसका मिस्ल सुअरी है, तो इस मिस्ल से वो कौन सा मिस्ल मुराद लेते हैं? मिस्ल सुअरी। न अगर शिकार किया हुआ जानवर ऐसा है जिसका कोई मिस्ल सुअरी नहीं, जैसे कबूतरी, चिड़िया, तो फिर इसी मिस्ल से वो कौन सा मिस्ल मुराद लेते हैं? मिस्ल मानवी। यानी एक वक्त में एक लफ्ज़ मुश्तरक से चंद मानी मुराद लिए जा रहे हैं, तो उम्मे मुश्तरक है। और अहनाफ के यहाँ उम्मे मुश्तरक की इजाज़त नहीं, खुसूसन कलाम मुस्बत में तो इसकी इजाज़त है ही नहीं। एक वक्त के अंदर एक ही माना मुराद हो सकता है, चंद मानी मुराद हो नहीं सकते। तो शवाफ़ी के नज़दीक ये जायज़ होगा क्योंकि वो उम्मे मुश्तरक के जवाज़ के कायल हैं। लेकिन हम चूँकि इसकी नफ़ी करते भला कपड़ा एक हो तो उसके पहनने वाले मुतअद्दिद किस तरह हो सकते हैं, लफ्ज़ एक हो तो उसके मानी एक वक्त में मुतअद्दिद किस तरह हो सकते हैं। इससे हम ये कहते हैं कि जब उन जानवरों में जिनका कोई मिस्ल सुअरी नहीं है, मिस्ल मानवी वाजिब होता है, उलमा का इस पर इत्तेफाक है, तो फिर वो जानवर जिनका कोई मिस्ल सुअरी है उनका शिकार करने के अंदर भी मिस्ल मानवी ही मुराद होगा। क्योंकि देखो, उलमा का इत्तिफाक है इस बात पर कि वो जानवर जिनका कोई मिस्ल सुअरी नहीं है उनका अगर शिकार हो तो मिस्ल मानवी वाजिब होता है। तो फिर वो आयत के अंदर मिस्ल से कौन सा मिस्ल मुराद ले लेंगे? मिस्ल मानवी। तो फिर यहाँ पर एक माना मुतय्यन हो गया दलील से कि मिस्ल मानवी है। लिहाजा अगर किसी ने उस जानवर का शिकार किया जिसका कोई मिस्ल सुअरी है तो भी मिस्ल मानवी ही वाजिब होगा, क्योंकि दलील से एक माना मुतय्यन हो गया। यही मुअव्वल है, अब इस पर अमल करना है हमको। अहनाफ का नज़रिया ये है, इसीलिए वो कहते हैं कि ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मिनन नाम को हम मा कत्ल का बदल बनाएं, और मिनन नाम के बारे में हम ये कहें कि ये बयान है मा कत्ल का। शवाफ़ी ने जिस तरह मिनन नाम को मिस्ल का बयान माना है ये सही नहीं। मिस्ल की वजाहत मिनन नाम से नहीं हो रही, बल्कि मा कत्ल की वजाहत मिनन नाम से हो रही। शवाफ़ी की जाने से ये बात कही जाती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा देखा कि मुहरिम लोगों ने शुतर मुर्ग का शिकार किया, तो फिर उन्होंने जज़ा के अंदर बुदने को वाजिब करार दे दिया था कि भाई एक गाय या एक ऊँट इसके बदले में कुर्बान कर दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी होने के बावजूद मिस्ल सुअरी वाजिब कर रहे शुतर मुर्ग के कत्ल पर कि गाय या ऊँट दे दो, कीमत वाजिब नहीं करते वो। तो हज़रत उमर के फ़ेल की इक्तिदा करनी चाहिए या नहीं? हम कहते हैं कि यहाँ पर असल बात आपने साबित की नहीं। हज़रत उमर का ये मज़हब हो सकता है कि वो मिस्ल सुअरी को साबित करते हो, लेकिन बहुत से सहाबा ऐसे थे जो मिस्ल मानवी को साबित करते हैं। नहीं, एक सहाबी का कोई फ़ेल हो उसको हम कुरान की आयत पर तरजीह नहीं दे सकते। कुरान की आयत के अंदर जब तुम्हारे नज़दीक भी उन जानवरों में मिस्ल मानवी वाजिब है
جن کا مثل سوری نہیں ہے تو پھر وہ مثل مانوی واجب ہوگا. ہر صورت میں مثل سوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور حضرت عمر کے فعل کا جہاں تک تعلق ہے ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پہلے اس کی قیمت نکالی تھی کہ اس شتر مر کی قیمت کیا تھی. قیمت جب نکل گئی نا تو پھر حضرت عمر نے یہ حکم دیا کہ اس قیمت سے ایک گائے خرید لو یا ایک بدنا خرید لو اور پھر اس کو قربان کر دو. تو یہ تو مثل مانوی ہی کو واجب قرار دینا ہوا. لہٰذا تمہارا اس طرح حضرت عمر کے فعل سے استدلال کرنا صحیح نہیں. اور ایک بات آخر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ دیکھو یہاں آیت کے اندر جزا کو بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ جو مثل ہیں نا اس کو متعین کریں گے وہ لوگ جو دیندار ہیں, عادل ہیں, مائنڈڈ ہیں. مثل جو ہے اس کو متعین کریں گے وہ لوگ جو عادل ہیں, دیندار ہیں اور مائنڈڈ ہیں. ایسے لوگ مثل کو متعین کریں گے. یحکم ذوی عدل منکم قرآن میں ہے یا نہیں؟ اب عدالت کی شرط جس جگہ ہوتی ہے وہاں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ جس جگہ پر غور و فکر کی ضرورت ہوگی وہاں پر ہی عدالت کی شرط لگے گی. اب مثل سوری کو متعین کرنے میں کیا غور و فکر کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ تو ہر کس و ناقص کر سکتا ہے. غور و فکر کی ضرورت قیمت لگانے کے اندر لگے گی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا بھی مثل مانوی اور قیمت ہی کو ثابت کرنا ہے, نہ کہ مثل سوری کو ثابت کرنا. ٹھیک ہے. چنانچہ قیمت ہم نکالیں گے, عادل لوگ جو متعین کریں گے وہ, اور پھر اس قیمت سے یا تو قربانی کریں گے یا اس قیمت کو فقراء میں تقسیم کر دیں گے یا پھر روزے رکھیں گے. لیکن ایک بات آپ لوگوں کے سامنے نوٹ کے طور پر کہہ دوں, قیمت عادل لوگوں کے حوالے ہوگی اس وقت جب جس جانور کو شکار کیا ہے وہ حلال ہو, ہرن ہو, خرگوش ہو. جس جانور کو کھانا حلال ہے اس کا اگر شکار کیا تو اس کی قیمت عادل لوگوں کے حوالے ہوگی. وہ قیمت جو بتائیں گے وہ متعین ہو جائے گی. لیکن اگر کسی نے شکار کیا حرام جانور کا, مثلا بھیڑیے کا شکار کر لیا, بھیڑیے کا گوشت تو اب کھا نہیں سکتے, تو اس کی قیمت عادل لوگ ہی متعین کریں گے. لیکن ایک بات ذرا ذہن نشی رکھنا, مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ایک بکری کی قیمت سے اس کی قیمت آگے بڑھے گی نہیں. بہت تو اس کی قیمت بکری کی قیمت جیسی ہوگی, اس کی قیمت سے آگے بڑھے گی نہیں. جو قیمت آئی پھر یا تو آدمی اس قیمت سے جانور خرید کر اس کو قربان کر سکتا ہے, یا آدمی پھر فقراء کے درمیان اس قیمت کو تقسیم کر سکتا ہے, یا پھر روزے رکھ سکتا ہے. اس کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی. ٹھیک ہے, بات سمجھے؟ اب میں ترجمہ کر لوں ایک مرتبہ. اسی بنا پر ہم نے کہا کہ شکار کی جزا میں مثل سوری واجب نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فجزاء مثل ما قتل من النعم کی وجہ سے. اس لیے کہ مثل کا لفظ یہ مثل سوری اور مثل مانوی کے درمیان مشترک ہے, اور مثل مانوی اس شکار شدہ جانور کی قیمت ہے. اب اس نص میں کبوتری کے شکار میں, چڑیا کے شکار میں اور ان جیسے جانوروں کے شکار میں مثل مانوی مراد لے لیا گیا ہے. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ کبوتری کے شکار میں, چڑیا کے شکار میں اور اس جیسے جانور کے شکار میں اس نص میں مثل مانوی مراد لے لیا گیا ہے. اس میں علماء کا اتفاق ہے. چنانچہ اب اسی نص کے اندر مثل سوری کو مراد نہیں لیا جائے گا, کیونکہ پھر تو عموم مشترک لازم آئے گا, اور احناف کے یہاں خصوصاً کلام مثبت میں مشترک کے لیے بالکل بھی کوئی عموم نہیں ہوتا. چنانچہ مثل سوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا مثل سوری اور مانوی کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے.